Good morning, everyone. Today we will continue with the same lesson, the ashes that made trees bloom. Yesterday we have talked that the owners of Muko mourned for their pet. They put flowers and water on its tomb. That night the spirit of Muko appeared to the old farmer in a ड्रीम. क्या हुआ था? ओल्ड फार्मर के ड्रीम में मुक्को उसके सपने में आकर उसे क्या बोलने लगा? इट आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव्स, मेक अ mortar for rice pastry and meal for his bean sauce. Now let's see what happened next. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into a heap of gold coins. फिर क्या हुआ? तो जो वो ओल्ड मैन था, जब उसके कुत्ता उसके जब सपने में आकर उसे बोलने लगा कि ये जो पाइन ट्री है उसे कट करनी है, तो हैमर से जब वो कट करने लगा तो क्या हुआ? When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. जब उसके तने के बीच से लगभग 2 फुट लंबा उसने एक टुकड़ा काटा, बहुत मेहनत से जब अलग किया तो उसने छेनी से छिलकर उसने एक छोटे से कटोरे जैसा गहरा छील लिया. फिर उसने लकड़ी का ही एक मुसल बनाया जिससे चावल को कूटा जाता है. अब जब न्यू ईयर का समय नज़दीक था तो चावल की कुछ पेस्ट्री बनाने की उसकी इच्छा हुई. जब समूचा चावल उबल गया, बूढ़ी ने उसे ओखली में डाल दिया तथा वृद्ध ने उसे कूट कूट कर कोई लोई बना ली. एक लोई बनाई, उस पर मुसल लगाता रहा जब तक कि वह लोई पकाए जाने लायक तैयार नहीं हो गई. अचानक सारी लोई सोने के सिक्कों में बदल गई. जब वो ओल्ड वुमन थी अपनी चक्की उठाई तो उसमें सेम के बीज भर दिए, फिर उन्हें पीसने लगी. तो पता है क्या हुआ? तो वर्षा की बूंदों की भांति उसमें से सोना गिरने लगा. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when boiled beans were being ground. "Good day me," cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. फिर क्या हुआ? जो उस दौरान उनका जो पड़ोसी था खिड़की के अंदर से झांका जब उबले बीज पीसे जा रहे थे. ओल्ड कपल वेर रिच अगेन. नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But at the first blow and turn, the rice with beans, pastry and sauce turned into foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into the pieces to use as firewood. इस दौरान जब ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से अंदर झांका जब उबले बीज पीसे जा रहे थे. हे भगवान, वो बूढ़ी चिल्लाई जब उसने चटनी की हर बूंद को पीले सुवर्ण में बदले देखा. कुछ मिनटों में चक्की के नीचे का तसला चमकते सोने से भर गया. इसी प्रकार वृद्ध दंपति पुनः धनवान हो गए. अगले दिन ही कंजूस और दुष्ट पड़ोसी आ गए और ओखली और जादुई चक्की मांग ले गए.
उन्होंने एक में उबले चावल भरे और दूसरे में सेम के बीज। फिर वृद्ध ने उन्हें कूटना शुरू कर दिया और महिला ने उन्हें पीसना शुरू किया। पर पहली मुसल लगते ही पेस्ट्री और चटनी बदबूदार कीड़ों में बदल गई। The pastry and sauce turned into foul smell of worms, and still more angry at this, they chopped off meal into pieces to use as firewood. फिर उन्होंने क्या किया, लकड़ी जैसा वो चक्की के टुकड़े को बना दिया। Now let's discuss scene 2. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how he wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ तो उस भले बूढ़े व्यक्ति को फिर से एक सपना आया। ही सो अगेन अ ड्रीम, और कुत्ते की जो प्रेतात्मा थी उससे बोली, उसे बताया कि उस दुष्ट व्यक्ति ने किस प्रकार से चीड़ के वृक्ष से बनी चक्की को जला दी। उस चक्की की राख को लेकर मुरझाए वृक्षों पर बिखेर दो। कुत्ते ने क्या बोला कि वो जो चक्की की राख थी वो जो वृक्ष जो थे उनके ऊपर बिखेर दो तो वे पुनः खिल उठेंगे। ये कुत्ते की आत्मा ने बताया। बूढ़ा जो था वो तुरंत ही उठा, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर पर गया, जहां उन्होंने उस शैतान दंपति को एक चौकोर के किनारे फर्श पर बैठे तम्बाकू खाते देखा और चरखा चला रहे थे। वे थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों और पैरों की चक्की के छोटे टुकड़ों की तपन से सेकते थे और उनके पीछे उस चक्की के छोटे मोटे टुकड़ों को ढेर लगा था। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their nose at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. On coming home, the old man took his wife into the garden. क्या हुआ, जब वो घर पे वापस लौटा तो जो ओल्ड मैन था वो अपनी वाइफ को गार्डन में लेके गया। इट बीइंग विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेर, और जब विंटर की सीज़न थी और जो चेरी जो ट्री थी वो हुई, ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशीज ऑन इट। अब वो जो राख थी, जो एशीज थी, वो एशीज वो जो ट्री थी उसके ऊपर स्प्रिंकल करता है तो क्या होता है, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms. फिर जो पिंक ब्लूम्स जब उन्हें वो राख मांगी और जो राख जब छांटी उसने तो उन्होंने उसके ऊपर छिड़की तो वह वृक्ष खिलने लगा। उस पर गुलाबी फूलों की चादर बिछ गई जिससे हवा में सुगंध छा गई। This news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. और ये समाचार पूरे गांव में फैल गया तथा हर व्यक्ति इस अद्भुत घटना को देखने निकल पड़ा। The covetous couple also heard this story and gathering up and remaining ashes of the meal kept them to make withered trees bloom. लोभी दंपति ने भी ये कहानी सुनी और चक्की की जो राख बाकी बची थी उन्होंने क्या किया, वो एकत्रित की, उन्हें सूखे वृक्ष में फूल उगाने के लिए संभाल कर रख दिया। Now remaining lesson we will discuss in our next session. Bye everyone, have a nice day. Thank you.